नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना की टीआरएस काबीना में हुई तोसी। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने 6 नए चेहरों को दिलाया ओहदा और राजदारी का हल। अबू ज़हबी के लुलू ग्रुप ने रियासत तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का बनाया मंसूबा। वजीर आईटी केटीआर की कामयाब नुमाइंदगी। हिंदुस्तान में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट पर पाबंदी आयद। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। पाकिस्तानी तालिबान का मिलिट्री स्कूल पर हमला। 84 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी के कैफे से यरगमाली बाजियाब, हमलावर हुआ हलाक। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की सताइश। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना में पहली मरतबा आज मंगल को तौसी की गई। राजभवन में मुनक़दा एक सादा तकरीब में 6 वज़रा टी श्रीनिवास यादव, टी नागेश्वर राव, लक्ष्मण रेड्डी, ए चंदुलाल, जय कृष्णा राव और इंदिरा किरण रेड्डी को गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। सबसे पहले टी नागेश्वर राव ने हल्फ लिया। तमाम नए वज़रा ने तेलुगु जबान में हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के सबब राजभवन के करीब काफी ट्रैफिक की वजह से सड़क जाम हो गया था। हल्फ उठाने के बाद इन नए वज़रा ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना काबीना में आज 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है। शहर के हल्का असम्बली सनत नगर के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव को शोबे सयाहत का कलमदान दिया गया। इसके अलावा दिगर 5 टी नागेश्वर राव जो ऐवान असम्बली या कानून साज असम्बली के रुकन नहीं है उनको इमारात व शवारे का कलमदान, लक्ष्मण रेड्डी को महकमा बरखी, इंदिरा किरण रेड्डी को तामीर अमकना, जोपल्ली कृष्णा राव को महकमा सनत का कलमदान हवाले किया गया। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ, పక్షపాతం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అను నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలను చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను
తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచలేని లేదా వెల్లడించలేని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను సి లక్ష్మారెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణతో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగదేశాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూర్చాలని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అదే నేను సి లక్ష్మారెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచమని లేదా వెల్లడించమని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను అల్లేల రెడ్డి అని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము విధేయత చూపుతారని, భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని పునాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తారని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగదేశాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేరుస్తారని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను అన్నేరు వెంకటరెడ్డి నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాలను నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులను తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అదే నేను జూపల్లి కృష్ణారావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అదే నేను జూపల్లి కృష్ణారావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను అజ్మీరా చందీలాలని నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగ పట్ల నిజమైన శ్రద్ధ విధేయతతో చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధ అంతఃకరణతో శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా రాగదేశాలకు లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని
శాసనం ద్వారా ఆలోచించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అజ్మీరా చంద్రులాల అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిధిలో వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన విషయాన్ని నా కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్ష కానీ పరోక్ష కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ లేదా వ్యక్తులు కానీ తెలియజేయనని లేదా వెల్లడించమని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. मशरक़ वस्ता में रिटेल कारोबार करने वाले अबू ज़हबी के लूलू ग्रुप ने आइंदा एक साल के दौरान रियासत तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया है। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा सरकारी एलामिया में कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत के एक वफ्द ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव और कमिश्नर महकमे इंडस्ट्रीज जयेश रंजन की क़यादत में ग्रुप के सदर नशीन यूसुफ अली एम से मुलाकात की। एलामिया में कहा गया है कि अबू ज़हबी के इस ग्रुप ने तेलंगाना में 3 प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली एक टीम तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के साथ आइंदा माह हैदराबाद का दौरा करेगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू क्रिसमस के मौके पर जिला गुंटूर में ईसाई तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम करेंगे। ये पार्टी उमूमन हैदराबाद में हर साल मुनक़द की जाती थी, ताहम इस मरतबा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में तमाम आला अफसरों और ईसाई तबके की अहम शख्सियतों के लिए इस पार्टी की मेजबानी करेंगे। आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम की आंध्रा यूनिवर्सिटी के तुलबा ने आज मंगल को बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इन तुलबा ने स्कॉलरशिप की रकम में कमी पर बरहमी जाहिर की। यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों से वाबस्ता हॉस्टल में रहने वाले तुलबा आज सुबह सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। इन तुलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी के करीब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया। तुलबा के एहतजाज की इत्तला हासिल होते ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहां पहुंचे और इन तुलबा से बातचीत की। एहतजाजी तुलबा ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि उनके मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मलकाजगिरी के फेडरल बैंक में चोरी की एक वारदात पेश आई है। पीर की शाम चोर गैस कटर की मदद से बैंक का शटर काट कर अंदर दाखिल हुआ और लॉकर से 11 किलो सोना के अलावा भारी नगद रकम की चोरी कर ली। इसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चोरी की इस वारदात का उस वक्त पता चला जब बैंक के अफसर मंगल की सुबह बैंक पहुंचे। इस वाकये की फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और तफ्तीश का आगाज किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुकामी शख्स इस वारदात में मुलविस है। बता दें कि मलकाजगिरी में दूसरी मरतबा किसी बैंक में चोरी की ये वारदात पेश आई है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाकये की तफ्तीश कर रही है। सेंट्रल जोन में पुलिस ने शहर में अमन व कानून की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए रेलवे स्टेशन, पार्क्स और बस स्टैंड्स पर धावे करते हुए 600 से ज्यादा अफराद को तहवील में ले लिया है। डीसीपी कमलासन रेड्डी की क़यादत में बड़े पैमाने पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। शहर के सयाहती मुकामात पर आवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पुलिस सयाहों और आवाम की सलामती को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दे रही है, इसीलिए घोड़सवार पुलिस को भी नेकलेस रोड के पास तैनात किया गया है। पार्क्स और रेलवे स्टेशन से तहवील में लिए गए अफराद की काउंसलिंग भी की गई है और उन्हें ताकीद की गई है कि वो गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहें। आसिफ नगर डिवीजन में स्पोर्टिंग फुटबॉल ग्राउंड में जारी हैदराबाद पुलिस कमिश्नर क्रिकेट कप मुकाबलों की आज इख्तितामी तकरीब मुनक़द की गई। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से डीसीपी एरिया में आसिफ नगर डिवीजन के पुलिस सारी पुलिस स्टेशन एरिया में कम्युनिटी पुलिसिंग, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग एनकरेज करने के लिए ये जो टूर्नामेंट्स कराया गया,
इसमें पूरा 62 teams, about 750 people have participated. ये बहुत अच्छा रिस्पांस था और ये जो गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया है पूरा साहिबान के लिए हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हैदराबाद सिटी पुलिस के काम में और पार्टनर्स होके हमारे एक्टिविटीज में आप भाग लिए तो हमारे पुलिसिंग का क्वालिटी बढ़ जाएगा के लिए, सेफ्टी के लिए। ये पूरा हमें बताने के लिए हर पुलिस स्टेशन के लिए हम आज ये फेसबुक लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैं उधर जा रहा हूँ। सिटी फ्रेंडली पुलिस के तहत आज सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर शहर के तमाम पुलिस स्टेशन के अकाउंट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ये इफ्तिताह सीपी ऑफिस में डीजीपी अनुराग शर्मा ने अंजाम दिया। फेसबुक पर तमाम पुलिस स्टेशन के अकाउंट खोलने का मकसद पुलिस से आम आदमी के बराह रास्त जुड़ने और अपनी शिकायत दर्ज करवाना है। हर पुलिस स्टेशन की एक जो फेसबुक पेज बनाया गया है उसको स्टार्ट करने के लिए हम ज्वाइन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली 29 और 30 नवंबर को गुवाहाटी में जो डिग्री किसी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे देश के स्मार्ट पता जैसे स्ट्रिक्ट सेंसिटिव मोबाइल अकाउंटेबल अलर्ट रिस्पॉन्सिव ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों पर जोर दिया था। उसमें से साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, टेक्नोलॉजी का यूज जो है ज्यादा से ज्यादा हो और साथ में एक ये भी कहा था कि हर पुलिस स्टेशन का या एक वेबसाइट हो या एक फेसबुक पेज हो। और लग रहा है कि आज हम हैदराबाद के अंदर पहली बार हर पुलिस स्टेशन का एक फेसबुक पेज हमने खोला है और उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के मौके पर 1971 की जंग में बहादुर से लड़ने वाली मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और उनकी बहादुरी को याद किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर हम अपनी उन मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और बहादुरी के कारनामों को याद करते हैं जिन्होंने 1971 की जंग में जुर्रतमंदी से लड़ाई लड़ी। हमें उन पर बहुत ज्यादा फख्र है। 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को हुए दिल्ली में गैंगरेप की आज बरसी है। गुज़िश्ता 2 सालों में कसूरवारों को सजा हुई, नए कानून बने पर असमत दरी की वारदातें नहीं रुकी। पूरे मुल्क को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप के वाक़े को कोई नहीं भूला है। आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में 6 अफराद ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। दिल्ली में कुछ दिन इलाज के बाद मुतासरा लड़की को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उसने 29 दिसंबर 2012 को दम तोड़ दिया था। बस एक ही परिवर्तन आया है कि लोगों को ये समझ आया है कि निर्भया कांड में जो हुआ था वो गलत है। बाकी ना ही उस काम में कोई कमी आई है, बल्कि निर्भया कांड के जितने भी अपराधी हैं वो आज भी जेल में हैं, उन्हें सजा नहीं मिली। नहीं, कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि आज भी लड़कियां उतनी सुरक्षित है ही नहीं, ना उनके पेरेंट्स उनको उतना सुरक्षित मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। जो भी पनिशमेंट मिला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा खास, और भी बढ़ गया सब कुछ। कहीं ये उनकी बिहेवियर चेंज होनी चाहिए लोगों की, तब जाके सब सुधार आ सकती है। जो हमारे लॉज है, जो संविधान है और हमारा जिस तरीके से जजमेंट होता है उसको बदलना जरूरी है। जब तक आप सही जज
पनिशमेंट नहीं दोगे, फटाफट फास्ट कोर्ट्स के तहत आप नहीं दोगे पनिशमेंट, जजमेंट नहीं दोगे, तब तक ये चीजें लोगों के मन में डर नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज है डर। लोगों के यहाँ डर नहीं है। दिन में आए कि मैं दिन में तो फील सेफ करती हूँ, बट जैसे ही रात आती है, मतलब आफ्टर 8 o'clock मैं अकेली जाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि आई फील कि स्ट्रेंजर्स इतने हैं, एंड एक्चुअली बाइक राइडर्स इतने होते हैं कि आपको फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि आप अकेले कहीं जाओ until unless आपके साथ आपका भाई नहीं हो या आपके कोई बड़ा कोई नहीं हो। At the outset, I would like to tell all of you that particularly after December 16, 2012, Delhi Police has now taken a number of steps to ensure that the women who are the victims of crime against women feel confident of reporting any harassment which they face to police. In this regard, a number of steps have been taken. In any case, you are aware that a lot of changes in law also have occurred. Notwithstanding the changes in law, a number of steps have been taken by Delhi Police to ensure that women who come to police, their grievances are heard effectively and investigation carried out speedily and culprits brought to book. The question now is no more what happened that day, but how to ensure that women are empowered to such a point that they can be sure that they will be safe. And I think women being trained in certain martial arts like karate and so on should form part of the curriculum in the schools. Furthermore, I think the men who do this kind of horrible things, they should be given some deterrent punishment by which they can never rape again. I don't want death penalty because that is too much of a relief for them. But these men should live the rest of their lives in such a way they can never conduct physically a rape. So that those are some of the things that we need to do. हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ना कमी आई है ना उस फंड का सही ढंग से यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अभी तक हमारे हिंदुस्तान में लोगों को शर्म नहीं आई है और लगातार उसके बाद और रेप बढ़े हैं और एक और अपराध बढ़ चुका है कि रेप के बाद अब लोगों को बच्चियों को मार देने का एक लोगों में आ गया है कि भाई गवाह नहीं रहा तो उसको मार दो। ये बात सही है कि महिला असुरक्षित है। और क्या एक ही गैंग हुआ जो गैंग की एनिवर्सरी हो रही? मैं तो आज भी पढ़ रहा था कि कई रेप हो गए हैं दिल्ली में। रोजाना इस तरीके के देश में घटनाएं घट रही हैं। तो सरकार को गंभीरता से उस दिन सदन में भी हम लोगों ने इस बात को कहा कि आखिर अंतिम कब होगा, कब देश की महिलाओं को अधिकार मिलेगा, महिला अपने को कब सुरक्षित समझेंगी। आखिर सरकार इसको बताए तो, और हम लोग इस संबंध में जो भी सहायता लेना चाहते हैं हम लोग सहायता करने को तैयार। जितने भी कदम उठाए गए थे और पुलिस का जो होना चाहिए था वो कदम कुछ ना कुछ या तो ढीले पड़ गए हैं या जितनी तेजी से काम शुरू किया था वो नहीं हो रहा। इसलिए जो क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है वो घटा नहीं है, बल्कि अगर जो आंकड़े देखे जाएं और न्यूज़पेपर्स पढ़े जाएं रोज तो लगता है कि बढ़ा है। तो ये एक चिंता की बात है, सोसाइटी के लिए भी है, हमारी लड़कियों के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। इसको करना चाहिए। इफ यू कांट कीप योर गर्ल्स एंड विमेन सेफ इन दिस कंट्री, व्हाट एल्स कैन यू डू? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिडनी यरगमाल मामले से कामयाबी के साथ निपटने के ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म टोनी एबट की सताइश की। मोदी ने टोनी एबट से फोन के जरिए इस वाक़े के सिलसिले में बातचीत भी की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि टोनी एबट इस मामले से निपटने में जिस तरह की क़यादत का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। इस वाक़े में जिन 2 अफराद की जानें गई, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इराक और शाम में सरगर्म तंजीम इस्लामिक स्टेट यानी दाइश पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क में दाइश को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और हुकूमत सोशल मीडिया समेत साइबर दुनिया में उसकी हिमायत में होने वाली सरगर्मी पर निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने जा रही है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज मंगल को लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ये इत्तला दी।
राजनाथ सिंह ने दाइश यानी IS की सरगर्मियों पर रोक लगाने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसे ही दुनिया में IS की सरगर्मियां शुरू हुई हैं, वैसे ही हुकूमत ने इस पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में CBI की खुसूसी अदालत ने कोयला घोटाले में CBI की केस बंद करने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो चाहती है कि इस मामले में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह से पूछताछ की जाए। इसके साथ ही केस की पूरी तहकीकात की हिदायत भी दी गई है। अब इस केस की अगली समाअत 27 जनवरी को होगी। याद रहे कि साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह उस वक्त के कोयला वजीर थे। कोर्ट ने CBI से पूछा है कि आखिर उस वक्त के कोयला वजीर से पूछताछ क्यों नहीं की गई। The decision by a special court ordering that the CBI should record the statement of the Prime Minister of India, the former Prime Minister of India, that is Manmohan Singh, who was the coal minister when the coal gate scam took place, is a big decision. The Bharatiya Janata Party has been fighting about the coal gate scam since time long. We fought on the floors of the parliament and we fought on the streets as well. We were the ones who brought in the awareness amongst the people as far as the coal gate scam was concerned. And we had been reiterating from the very beginning that the buck stops with the PMO, that is the Prime Minister's office. It was Prime Minister Manmohan Singh who had in fact ordered such kind of allocations during his reign as the coal minister. The big question is, after all, Manmohan Singh ji was a shadow prime minister. The real authority lied with 10 Janpad. So a lot still has to be answered. Manmohan Singh is a material witness and he should have been called much earlier. But now he is being called for completeness is very important. I hope he tells the truth as to who were responsible for those allocations. We know that Manmohan Singh didn't exercise the power of the Prime Minister unfettered. He was always subject to a fatwa from High Command, and we know who that High Command was. And so he must now come and tell the court what the truth is. If he doesn't tell the truth, if he hides the truth or he tells a lie, then he will also be an accused. उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने कोयले से जुड़े हुए सारे मसले को अपने संज्ञान में लेकर 1993 से लेकर 2009 तक जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में एक बहुत ही विस्तृत फैसला दिया है। अब उसके बाद अगर किसी अदालत ने कोई टिप्पणी की है या कोई निर्देश दिया है तो उस निर्देश को संज्ञान में लेना जरूरी है और उसको एक उसका अध्ययन करने के बाद उसको पढ़ने के बाद फिर ही उसी के ऊपर कोई टिप्पणी उचित होगी। पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने निरंतर और लगातार ये बात कही है कि कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कानून उससे ऊंचा है। राज्यसभा में मंगल को भी तब्दीली मजहब के मसले को लेकर हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से ऐवान में वक्फ सिफर की कार्रवाई नहीं चल सकी। ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अपोजिशन के अरकान ने खड़े होकर मुजाहरा करना शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो लोग बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते ऐवान से जा सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि तब्दीली मजहब के मसले को लेकर हंगामे और कारकर्दगी की वजह पीर को भी ऐवान की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। कल किस बात पर चर्चा करिएगा, आप यह चर्चा करिए जिस मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहिए करिए, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। रियासती कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में ISIS के हमदर्द की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट पर दी गई धमकी के पेश नजर पुलिस ने शॉपिंग मॉल, कैफे, मेट्रो स्टेशनों और दीगर अवामी मुकामात पर एहतियाती इक़दामात के तहत सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए हैं। अगरचे ये ट्विटर पर दी गई धमकी झूठी साबित हुई है, मगर पुलिस कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। This is not an investigation which will depend only on, let us say, interrogation of the accused or recovery of some property in and around Bangalore, like we do in many other cases. It is a case which is unique because the offences, the evidence to prove that offences have been committed has to be collected from the internet, has to be collected from the Twitter account,
for which we have to download a large amount of data. So what has been done so far as of yesterday is that more than 1 lakh tweet data has been downloaded into our servers. I think we have also downloaded almost 17 to 18,000 follower list. We are also in touch with Twitter company in Delhi and through their US office to help us to get data that is not available visible on the net but that is in the background. I believe that we have a right team in place and the team is on the right track. So let us hope that in the coming day or two we should be able to come around to grips with the data and start learning what makes sense out of the data and see how it leads for further investigation. We have registered a case under various sections of law, including Section 125, as well as the UAPA Act, as well as Section 66 of the Information Technology Act. So you may know that we need to collect evidence on those lines as to whether or in what way did the information passed by him or messages passed by him have led to incitement and instigation of people to commit offences which are punishable under Section 125 or Unlawful Activities Prevention Act or under the IT Act. नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर। पाकिस्तानी तालिबान ने पेशावर के एक मिलिट्री स्कूल पर हमला किया है। इस हमले के नतीजे में 84 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है, जबकि सैकड़ों तुलबा और टीचरों को यरगमाल भी बना लिया गया है। हुकाम के मुताबिक दो तरफा फायरिंग की भी खबर है कि फौजी वर्दी में मलबूस 5 से 6 अस्करियत पसंद पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल हुए। बताया गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि हमलावरों को बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स को निशाना बनाने के लिए कहा गया है, न कि बच्चों को। तजियाकारों के मुताबिक तालिबान यरगमालियों की रिहाई के बदले मुतालबात पेश कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने आज मंगल को अलग सुबह कार्रवाई करते हुए सिडनी के एक कैफे में मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाने वाले हमलावर को हलाक करते हुए यरगमालियों को रिहा करा लिया है। मुकामी ज़राए इब्लाग पर नशर करदा रिपोर्टों के मुताबिक हलाक होने वालों में हमलावर के अलावा 34 साला कैफे का मालिक और एक 38 साला औरत शामिल है। एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं जो इस वक्त जेर इलाज है। अब तक मजमूई तौर पर 17 यरगमालियों के बारे में हतमी मालूमात सामने आ चुकी हैं, जिनमें 5 वो अफराद भी शामिल हैं जो पीर के रोज ही कैफे से निकलने में कामयाब हो गए थे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रियासत न्यू जर्सी में एक फौजी अड्डे के दौरे के मौके पर फौजियों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी दाइश के खिलाफ सरगर्मी से कार्रवाई कर रहे हैं। कोई इस गलती में ना रहे कि अमेरिका दाइश को कमजोर करेंगे, बल्कि हम उसे तबाह करके ही दम लेंगे। सदर ओबामा का यह भी कहना था कि जो लोग अमेरिका के खतरे का बास है उन्हें कहीं भी महफूज ठिकाने नहीं मिलेंगे। इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूरोपीय रियासतों पर इल्जाम आयद किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने के मामले में फलस्तीनी क़यादत की ताज़ा कोशिशों की हिमायत कर रही है। उनका कहना था कि ऐसे इक़दामात से इसराइल को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि इसराइल पर जबरी तौर पर शराइत आयद करने से मुताल्लिक़ फलस्तीन और चंद यूरोपीय रियासतों के हालिया इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल में मज़ीद बदतरी पैदा होगी। नेतन्याहू का ये बयान रोम में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के साथ करीब 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद सामने आया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इसराइली सलामती से मुताल्लिक़ उमूर समेत मशरिक़ वस्ता के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जारी ताज़ा पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना की टीआरएस काबीना में हुई तोसी। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने 6 नए चेहरों को दिलाया ओहदा और राजदारी का हल।
अबू ज़हबी के लुलु ग्रुप ने रियासत तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का बनाया मंसूबा। वजीर IT KTR की कामयाब नुमाइंदगी। हिंदुस्तान में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट पर पाबंदी आयद। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। पाकिस्तानी तालिबान का मिलिट्री स्कूल पर हमला, 84 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली हमले की जिम्मेदारी। और सिडनी के कैफे से यरगमाली बाजियाब, हमलावर हुआ हलाक। मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की सताइश। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए उर्दू TV। अल्लाह हाफिज।